Anyone joined the I think so. Voice is clear. Let's begin today's week with your favorite attendance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 कौन है? आप हैं क्या? 10, 11, 12, 13. 12 कौन है? 12. आप हैं 12. 13 कौन है? 14, 15. 15. कहीं रास्ते में हम सीढ़ियों पे 16, 17, 18, 17 up, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. अल्लाह पाक मुबारक करे. अल्लाह पाक सेहत अता. एटीन यानी कि नहीं है और 23 भी नहीं है. 18 है कि 23 है? क्योंकि 15 आ गए और आप बेटा 18 आप है. 23 अभी नहीं आई. लगा दिए ना एब्सेंट और क्या. We are going through जब तक IT सपोर्ट आती है क्योंकि कुछ glitch आया हुआ. Anyhow, we are going through the concept of correlation. ऐसे ही. Regression. We will start the basis or classical approach of modeling, class machine learning or artificial intelligence का आगाज वहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे. आज थोड़ा सा मुश्किल ही है, थोड़ा खुश होता है जब आप थ्योरेटिकल डिस्कशंस करते हैं. हाँ वैसे ये भी ठीक. लेकिन बहरहाल क्योंकि ये वीक जो है इसमें आपका मॉडल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल लीनियर बाइवेरिएट एनालिसिस एंड मॉडलिंग को कवर करना इंशाल्लाह. आज आई विल सेट द बेसिस फॉर द रिग्रेशन. फिर एप्लीकेशन में तो जस्ट इट्स वन क्लिक अवे. Just as a preamble, when you are dealing with two variables at one point of time and pair of observations, you have X variable and you have Y variable.
x1, x2, so on, xn, and y1, y2, so on, yn. Both observed on a continuous, quantitative continuous scale. Normal ये हो तो अच्छी बात है. ऐसे ये तीनों की कंडीशन में आते हैं. When you are going for a correlation analysis or a regression analysis, variables should be on a scale of quantitative, continuous, following normal probability distribution. And when you are dealing them simultaneously, that means you have n pair of observations. पहली आपकी डिजाइन क्या है? Linearity. The behavior of both the variables or the relationship with which the two variables are connected to each other with linear. Linear model is the mathematical equation y is equal to c plus mx. इसकी statistical equation y is equal to alpha plus beta x plus epsilon I है. या ये उसका पॉपुलेशन वेरिएंट है और उसका सैंपल वेरिएंट जो है y is equal to a plus b x plus ei. Equation linearity, linear equation जिसको कहते हैं. How many of you have the idea of that equation y is equal to c plus mx or alpha plus beta x or a plus bx? How many? हाथ खड़ा करें ना, कितने लोग पहले से जानते हैं इस इक्वेशन को, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज पहली दफा बोर्ड पे लिखी देखी. ओके, कोरिलेशन में हमने ये सीखा, फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप. जिसमें हमने तीन बातें की थी, उसमें कोई किसी को शक शुबा हो कि कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थ्रू, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी कंप्यूटेशंस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, और उसकी इंटरप्रिटेशन में तीन चीजें आती हैं, साइन, देन कम्स मैग्नीट्यूड, देन कम्स स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. ये डिस्कस हो चुकी है तीनों. किसी को कोई मसला परेशानी? और इससे भी पहले इसका इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या है, स्कैटर प्लॉट. अच्छे बच्चों को पढ़ाने का यही फायदा. स्कैटर प्लॉट से आप असेसमेंट करने की, अंदाजा करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मच इज द लीनियरिटी बिटवीन द टू वेरिएबल्स. लेकिन इंटरप्रिटेशन और सॉलिड बनाने के लिए और go into more formal analysis, go for the Pearson coefficient of correlation, or जिसका sign होता है, sign gives you what is the direction, whether the movement of the two variables is in the same direction or opposite direction. Then comes the magnitude within the scale of from -1 to +1. How much is the strength? The closer to 0, the lesser is the weaker is the correlation, and departure from 0 in either direction increases the strength of the linear relationship between the two variables. Then comes the statistical significance. Whatever be the apparent or estimated value of the coefficient of correlation, should we go with it? Is it significant statistically or insignificant? So वो आप p value compute होती है and आपका hypothesis बनता है h naught rho is equal to 0 against alternative rho not equal to 0, और p वैल्यू कंप्यूट होती है जो आप कंपेयर करते हैं 5% से, और h नॉट रिजेक्ट कर देते हैं if your p value is less than your 0.05 and if p value is greater than 0.05, unable to reject. Unable to reject means that whatever be the coefficient of correlation estimated value, it is insignificant, and by rejection we means it is significant. तो इसमें कोई मसला, कोई सवाल, कोई परेशानी नहीं. एक चीज और बार बार इस्तेमाल होगी अभी इस वक्त, वो है सिंपल. सिंपल ये वर्ड बहुत इस्तेमाल है. सिंपल लीनियर कोरिलेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन. बिकॉज रिग्रेशन को लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सारी इस सिग्निफिकेंस से मुराद ये होती है कि जो आपकी आर की वैल्यू कंप्यूट होती है
वो 0.21 हो, वो 0.47 हो, वो 0.63 हो, वो 0.74 हो या वो 0.97 हो, प्लस या माइनस के साथ जो भी हो, ये मैंने हाइपोथेटिकली कुछ वैल्यूज लिख दी. First comes the sign, second comes the magnitude. They say that moderate or weak correlation, moderate correlation, good correlation, strong correlation, very strong or strong correlation, approximately perfect correlation. Are these values significant, especially जब इस तरह के scenarios? Should we consider this 21% correlation being significant? अब इसको इग्नोर करेंगे, इसको significant समझ के चलेंगे. Statistical significance होती है, डिटेक्ट करेंगे इस वैल्यू पे क्रॉस लगाएंगे. क्रॉस में बराबरी होती है कि आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें. It's not rho is equal to 0 against alternative rho not equal to 0 and we perform the procedure based on the p value. फिर आप statistical significance और significance को चेक करें. इस जगह शायद चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये highly significant है. इस जगह भी चेक करेंगे. But whenever you have weak or moderate correlation, उस जगह पे फिर आपको जरूरत पड़ती है to check the statistical significance और ठीक है. तो ये स्टेप्स इसी तरीके से चलेंगे. साइन, मैग्नीट्यूड, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. अब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जी अपनी बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं. जी, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो उस वक्त सिग्निफिकेंस चेक करने की जरूरत ऑटोमेटिक ऑब्वियस होगा. वो ऑब्वियस होगा, ऑब्वियस होगा. करेंगे सिग्निफिकेंट ही निकलेगा. A correlation coefficient of 0.6 and above statistically significant होगा. करें जरूर यार, क्योंकि वो स्मॉल सैंपल साइज और लार्ज सैंपल साइज के कॉन्सेप्ट आ जाते. करना चाहिए लेकिन कुछ चीजें ऑब्वियस हो. जैसे आप किसी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आ गए तो ऑब्वियस है कि उसका ए ग्रेड हो. इट्स वेरी ऑब्वियस. ता वक्त ये कि कोई हाईएस्ट 70s में ना हो. यस, जैसे एक दफा मेरी क्लास में 72 के 3 वाज द हाईएस्ट and I started the B plus grade from 73. Otherwise, it is very obvious when you have a topper in the class with respect to your absolute marks, तो वो आपका A grade होता है. Very obvious. और एवरेज पे आपका B grade होता है. It's very obvious. ठीक है, तो कुछ चीजें obvious होती हैं, लेकिन बहरहाल तरतीब यही है. क्योंकि आप फिर ये रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि अच्छा ये वैल्यू होगी तो चेक करेंगे और ये वैल्यू नहीं होगी तो नहीं करेंगे, इससे आप एक नए झंझट में पड़ जाते हैं. सो रादर देन टेक द थिंग्स वेरी सिंपल, यू फर्स्ट हैव टू इंटरप्रेट विद रिस्पेक्ट टू साइन, then with respect to magnitude and always go with the statistical significance. क्योंकि सॉफ्टवेयर जब आपको ये परमिशन दे रहा है कि जब भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो कहेगा डिस्प्ले p वैल्यू और नॉट. So why not to use this option? Always set that display p value and we test the statistical significance. ठीक है, और कोई सवाल? आपने खुद डाउनलोड किया है? नीचे से आईडी सपोर्ट से लिया तो फिर भी प्रॉपर्ली इंस्टॉल कोई नहीं. मेरे तो एक फाइल उसकी रीडमी के नाम से या रीडमी फर्स्ट के नाम से उसमें है कुछ, वो शहजाद शौकत से बोलिएगा, ठीक कर देंगे. कोई नहीं, ये कर देंगे अभी. क्लास के जो ब्रेक होगा ना 10 मिनट का, तो आप 10 मिनट के क्विज तो कौन सा को पहली दफा क्विज देना है. इट्स वेरी ऑब्वियस. अच्छा, after investigation of the degree or strength of the linear relationship, next obvious step is what? वो रिलेशनशिप निकालें, डेवलप करें दैट लीनियर रिलेशनशिप. जिसका खोज लगा रहे थे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन थ्रू स्कैटर प्लॉट और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कर रहे थे, वो पता चल गया है या नहीं है. नहीं है तो बात खत्म होगी. एंड इफ यू नो दैट देयर एग्जिस्ट solid or good degree of linear relationship between the variables, then estimate that relationship. वो जो procedure of estimating the linear relationship है, उसको कहते हैं regression.
After investigating the degree of strength of the linear relationship between the two curves. देखिए एक चीज याद रखो, इस स्टेज पे जाके ना आपने हर दी किताबें हर गलती वाले को भी देखनी पड़ेगी, काफी उसमें बुलेट पॉइंट्स लेते हैं, वर्ड बाय वर्ड नहीं जाते। रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, यू वांट टू गो वर्ड बाय वर्ड। आपने ये देखना है कि आर में और इसमें क्या फर्क है, गो विद इट। आपको खुद ही सारे पॉइंट्स देखने आ जाए। आर है और स्कैटर प्लॉट है टू इन्वेस्टिगेट द लिनियरिटी बिटवीन द टू वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव कंटीन्यूअस नॉर्मल। लेकिन जब पता चल गया तो लीनियर रिलेशनशिप डिटरमिनिस्टिक केवल है, मैथ्स वाले कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये है, स्टैट्स वाले कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये है फॉर पॉपुलेशन और ये है फॉर सैंपल। हम इसके साथ करेंगे बिकॉज़ वी ऑलवेज हैव अ सैंपल डेटा फॉर द एस्टिमेशन। इसको कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, इसी को कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और इसी को कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। By simple we means what? We have two variables to deal. Simple में we have two variables to deal with. अगर आपका वेरिएबल दो से ज्यादा हो जाएंगे तो ना कोरिलेशन सिंपल रहेगा ना रिग्रेशन। हम पहले सिंपल को डिस्कस करेंगे और फिर एक सवाल जिसका जवाब आपको चाहिए जो लिखना है आपको वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। नोट कर लेंगे शायद। State the major differences between the correlation analysis and regression analysis. State major differences between the correlation analysis and regression analysis. कुछ चीजा नुकात मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप खुद एक्सप्लोर करें। कोरिलेशन इन्वेस्टिगेशन है, रिग्रेशन एक इक्वेशन, आर का जो एक फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का summation x minus x bar into y minus y bars divided by under the root naught summation x minus x bar whole square into अब और बनाए इधर इस इक्वेशन में इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल है, इक्वालिटी के राइट साइड में। इस फॉर्मूला के अंदर दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपके राइट साइड में और ये जब प्रोसेस होके इक्वल टू आएगा तो ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी व्हिच इज मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। आप उससे सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि what is the meaning of sign, magnitude and statistical significance of the correlation coefficient, nothing else. The estimated value of the correlation coefficient only provides you the information of the or the strength of the linearity between the two variables. Regression is an equation. Regression is an equation. इसमें ये वेरिएबल अगर प्रोसेस करें तो आपको इस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, और यहां पे एक वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है व्हिच इज इंटरडिपेंडेंस। बिकॉज दोनों वेरिएबल राइट साइड में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स को पहले लिख ले वाई को बाद में लिख। यार शेयर में जाओ, एक प्रोसीजर था कि ये क्रेडेंशियल्स डालने वाला है मुझे इंटरडिपेंडेंस। सर ये ई क्या है? ई को छोड़े हम इधर उधर गए ना, तो फर्क पहले तलाश करना, फर्क तलाश
कोरिलेशन एनालिसिस जब आप परफॉर्म करते हैं that both the variables you are treating them as interdependent. x को पहले लिखिए y को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं। जहां फर्क पड़ता है the variable on the left side of the equation is dependent. क्या खिलाता हूँ ऐसे क्या? ये उधर and the variable on the right side of the equation is independent. मर्जी नहीं है, दिल करे जिसको इंडिपेंडेंट लिख दें, दिल करे जिसको डिपेंडेंट लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा रिग्रेशन में। यू हैव टू असाइन द रोल टू अ वेरिएबल। वाई मैंने लिखा है लेफ्ट साइड पे, आप एक्स लिख दें, जो वेरिएबल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे होगा वो डिपेंडेंट होगा, और जो वेरिएबल इक्वेशन के राइट साइड पे होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट। सो रोल ऑफ द वेरिएबल ही डिफरेंस है। कोरिलेशन में इंटरडिपेंडेंस है, रिग्रेशन में डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। एक्स जहां पे मैंने एक्स लिखा है, नाविगेटर करना कि एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ये वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट रीड होगा, और ये डिपेंडेंस। कोरिलेशन एनालिसिस आपको एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, रिग्रेशन एक इक्वेशन है जिससे क्या की जाएगी, प्रिडिक्शन। कोरिलेशन से प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, रिग्रेशन से प्रिडिक्शन हो सकती एनालिसिस, क्योंकि the ultimate result of the regression analysis is an equation, and by using that equation and putting the value of the independent variable, you can have the average value of the dependent average. पर बजाय दोनों के लिए डाटा यही है, and a pair of observation. Correlation is more of a descriptive analysis, regression is more of an inferential analysis. In correlation, we assume that both the variables are interdependent to each other. In regression analysis, we assume one variable to be dependent and other to be independent. Correlation cannot be used for prediction. Regression analysis is used for prediction. Purpose ही ये है कि हम एक इक्वेशन डिफाइन करें जिससे प्रेडिक्शन हो सके based on the sample information. हम सैंपल की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एक मॉडल बनाए जो हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है फ्यूचर। तो ये वैसे टेक्निकली फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या नाम अलग था, लेकिन ज़्यादा शुरू में समझाने के लिए ये बोलना पड़ा। जैसे you need this window to see through. That model actually is that window based on the sample information. There are plenty of other differences, लेकिन ये major differences when you are going for the regression analysis. अब एक चीज और ध्यान में रहे, वो ये है अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू परफॉर्म रिग्रेशन एनालिसिस है और आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है पहले, तो फिर आप जब स्कैटर प्लॉट बनाएंगे ना, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टू डेवलप रिग्रेशन इक्वेशन and you are using scatter plot and correlation analysis as the investigation procedures, तो अब तरतीब नहीं खराब करनी, क्योंकि आपने रिग्रेशन लाइन के लिए जिस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट डिसाइड कर लिया है, स्कैटर प्लॉट में उसको एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ विजुअलाइजेशन में आता है। जी जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी, ये शुड वाली बात नहीं है,
must be placed on x-axis to have a true depiction of the linearity of the regression analysis. ये याद रखना, ये principle of visualization में आता है, असूल है उसका. Independent variable has to be on the x-axis and the dependent variable. Okay जी. और इस इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर्स, एक है a, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट. इसको बोलने सारे. और b को कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट. क्या कहते हैं? Regression coefficient. Intercept भी y intercept जी वो इसी का इंटरसेप्ट होगा. मैथमेटिकली क्योंकि टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस की ये जो लाइन जहां वाई एक्सिस को कट करेगी वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस कर सकते. तो वाई को जरूर कट कराना चाहे इधर से. ये वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल की पर्टिनेंट क्वेश्चन. Now that's it. Y dependent variable, X independent variable, A interceptor, B slope of line भी कहते हैं, regression coefficient भी कहते हैं, और EI term, इसको disturbance term भी कहते हैं, random disturbance term. बुक्स में कुछ में यहाँ पे UI लिखा. ith ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, nth ऑब्जर्वेशन. एक्चुअली में I varies from 1 to n. अगर इन दो वैल्यूज को इस्तेमाल करके एरर निकालेंगे तो वो E1, इन दो वैल्यूज को इस्तेमाल करके एरर निकालेंगे तो वो E2 होगा, इन दो वैल्यूज को इस्तेमाल करके निकालेंगे तो EN. I से मुराद यह है कि वो रैंडम वेरिएबल है. ये चीज याद रखनी है. इस इक्वेशन में y भी रैंडम वेरिएबल है, x भी रैंडम वेरिएबल है और EI भी रैंडम वेरिएबल है, और तीनों की एन ऑब्जर्वेशन. और A और B क्या है? कांस्टेंट्स टू बी डिटरमिन्ड फ्रॉम to be determined from sample data. Sample data. फिटिंग से मुराद क्या है? ये जो कांस्टेंट सैंपल से निकालने होते हैं टेक्निकली उनको क्या कहते हैं? ठीक है ये कंप्यूटर साइंस में ऐसे है, लेकिन मॉडल फिटिंग में उनको क्या कहते हैं? और डिफाइन पैरामीटर्स. कोई भी मॉडल जब फिट होता है, चाहे वो रिग्रेशन हो, चाहे वो बाइवेरिएट हो, यूनिवेरिएट हो, मल्टीवेरिएट हो, मॉडल फिटिंग में आपको पैरामीटर्स का पता होना चाहिए और सैंपल से आपने पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं जिनको कहते हैं एस्टीमेट करना. सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में दो पैरामीटर्स हैं, ए और बी, टू बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द सैंपल डाटा. ए उसमें इंटरसेप्ट है, ऑप्शनल है, ए के ऊपर स्टार लगा लें. दिल करे आपका मॉडल के अंदर इंक्लूड करें, ना दिल करे ना करें, स्टैट के अंदर जाएं. रिग्रेशन में जब आप रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं
ऑप्शन में पूछता है फिट इंटरसेप्ट और डू नॉट फिट इंटरसेप्ट। जितने भी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस में आप सिंपल या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस फिटिंग करने लगेंगे तो पूछेगा इंटरसेप्ट शामिल करूं कि ना करूं। इट इज ऑलवेज ऑप्शनल। और फर्ज जो पैरामीटर है वो क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप ऑफ लाइन और बी और बीटा। ठीक है, समझ आ रही? अगली भी जा रही। अब लाइन के स्लोप से मुराद क्या है? dy by dx, रेट ऑफ चेंज। अब जरा मुश्किल बात होने लगी है। एक दफा इधर से, एक दफा इधर से, एक सीधा करें तो कैसे? मिसाल के तौर पे ये लाइन ऐसे बाय डिफॉल्ट मेरी सेटिंग में इसकी स्लोप अपवर्ड कर देता हूं, डाउनवर्ड भी फोकस। असल में सारा अगर आपको जिस दिन ये समझ आ गया था और ये समझ आ गया और मिलाना आ गया, रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट साथ आ गया है इसके, तो ये क्या मतलब है? बात कर रहे हैं रिलेटिव है, ठीक है, इसका मतलब है यूनिट नहीं है। लेकिन चूंकि कोरिलेशन एनालिसिस के बाद आ रहा है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या होता था? साइन फिर मैग्नीट्यूड फिर सिग्निफिकेंस। तो साइन के तो आप माहिर हो गए हैं। प्लस साइन इंडिकेट्स अपवर्ड डायरेक्शन, स्लोप अपवर्ड है और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। तो स्कैटर प्लॉट और कोरिलेशन और बी के साइन में रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ बात नहीं कहनी चाहिए, इनके साइन की मुख्तलिफ नहीं होगी, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी का स्कैटर प्लॉट बन रहा है, उसी का कोरिलेशन एनालिसिस हो रहा है और उसी डाटा का रिग्रेशन एनालिसिस हो रहा है। तो स्कैटर प्लॉट की इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू साइन, कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू साइन, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। That comes magnitude, वो समझाने लगा क्योंकि सिग्निफिकेंस तो आसान है ना। क्या पहले भी पढ़ा दूं तो आप टेंशन नहीं है। आपको h नॉट क्या करना है? बीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बीटा नॉट इक्वल टू 0। For p value you compare it with 5% and if less than 5% reject that noise, greater than 5% I'm going to reject that noise. Line belongs to 5, you can decide anything, however usually people reject. तो अच्छा टीचर इतना पढ़ा देना पड़ता है। That's इतने आगे कहने की जरूरत है। अब जो बच्चे जो आते हैं दफा पढ़ते हैं वो है बस पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। इधर आपका x वेरिएबल है और इधर आपका y वेरिएबल है। सब जब तक नहीं आएगी हम आगे नहीं करेंगे। आप टाइम t1 पे इधर खड़े हैं, ये लाइन इस पॉइंट पे तो है, इन डाटा पॉइंट्स के लिए ऐसे ही है जैसे किसी सिंगल वेरिएबल के लिए मीन होता है। कोई सिंगल वेरिएबल ले लेना, x की n वैल्यूज ले लें, y की n वैल्यूज ले लें, अलग से और मीन निकालते हैं ना, एवरेज टेंडेंसी। y वेरिएबल केस में पॉइंट्स नहीं होता, लाइन होती है। तो ये लाइन इन दोनों वेरिएबल्स के लिए ऐसे ही है जैसे एक वेरिएबल के लिए मीन। इस लाइन के ऊपर आप t1 पे खड़े हैं तो इसका एक रिफ्लेक्शन होगा x एक्सिस पे और एक रिफ्लेक्शन होगा y एक्सिस पे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। हर पॉइंट का एक x एक्सिस पार्ट भी और y एक्सिस पार्ट भी। टाइम t2 पे आप इधर पहुंच गए हैं तो इसका भी जाहिर है
एक रिफ्लेक्शन इधर है और एक रिफ्लेक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट का अगर चेंज करें, यानी कि एक्स एक्सिस पे एक कदम उठाने से वाई एक्सिस पे कितने कदम उठाने पड़ते हैं, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। चेंज इन वन यूनिट in the independent variable bring how much change in the dependent variable on the average is the regression। मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू आ जाती है 2.3 मिसाल है। इसका मतलब है x में एक यूनिट का इजाफा, चेंज इजाफा या कमी की बात नहीं कर रहा, change in 1 unit of x, change by on the average 2.3 units. So obviously the change होगा इस पे will impact or influence the value of y. But what is the change actually? So it depends on We have to calculate that change. Point follow रहा। Regression में आपको वो change calculate करना है क्योंकि वो चेंज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। लिनियरिटी का क्या मतलब है? Whatever be the value of b between 2 points, it will remain same for all the points. जो आज बात की है, कल भी वही है, उससे अगले दिन भी वही है, उससे 5 साल बाद भी वही है, उससे 10 साल भी, तो रेट ऑफ चेंज है। does it have to be the same? Yes, constant है। It's called constant rate of change। अगर 1 unit change करना, 1 यूनिट का चेंज नहीं है, 1 यूनिट के चेंज करने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट के चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑन द एवरेज कितना इफेक्ट आया है वही तो कंप्यूट करना है। दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, but that is sign. We need that magnitude, or that magnitude throughout will be constant, और यही तो linearity है। Otherwise अगर आपका ये वाला ग्राफ होता, ये तो कोई linearity नहीं है। यहाँ rate of change different है, यहाँ rate of change different है, यहाँ rate of change different है। If you have a constant rate of change throughout, that is called linearity। यही तो डिजायर है कि जो आज है वही कल है, वही 2025 में है, वही 2030 में ग्रोथ होगी, वही 2035 में ग्रोथ होगी। तो फिर हमको विजन 2050 बना सकते हैं, बिकॉज इफ वी गो विद द सेम रेट ऑफ ग्रोथ तो फिर हम जाके उधर पहुंचेंगे तो हमारे पास ये हासिल रसूल होगा। दोज आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चाहिए आज बेस्ड ऑन द सैंपल इंफॉर्मेशन, whimsical नहीं। ठीक है, sir, तो वो तो same नहीं होगा। अगर डाटा का ट्रेंड लीनियर है तो लीनियर होगा, क्यों नहीं होगा? इफ द डाटा इज लीनियर ट्रेंड, और वो आपने इन्वेस्टिगेट करना है स्कैटर प्लॉट और कोरिलेशन के थ्रू। If the trend is depicted as linear, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो उसे लीनियर होना है और वो आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। अगर 1 मिलीमीटर की बारिश हो जाए कहीं पे तो इम्पैक्ट उसका आपके सैनिटेशन सिस्टम के ऊपर कितना आता है। 1 यूनिट का चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल bring how much change on the average, नहीं भूलना, on the average in the dependent variable। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैं चेंज का वर्ड यूज कर रहा हूं। स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में तो x बढ़ने से y बढ़ेगा, x में 1 यूनिट बढ़ने से y उतने यूनिट बढ़ेगा जितना b है। लेकिन अगर स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो x के बढ़ने से y कम होगा, उतने यूनिट कम होगा 1 यूनिट बढ़ाने से x को। तो साइन सेपरेट है, मैग्नीट्यूड सेपरेट है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इनसिग्निफिकेंस सेपरेट है, कोरिलेशन में भी और रिग्रेशन कोएफिशिएंट में भी। प्रोसीजर नहीं याद, इसमें जोल नहीं होना चाहिए।
आपकी अंडरस्टैंडिंग। जी जी, सर मेरे दो सवाल हैं। आप 3 करें। तो दो ये है कि पहला उसमें ये है कि जो एरर टर्म है, अच्छा एक मिनट प्लीज, आप जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतने आप, जब तक आपका ये फिटिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपन पढ़ने का बहुत फायदा है। असल में सर ये जो एरर टर्म है, जैसे रेट इसको छोड़ें आप, इसको पहले अब इधर तो आते, इधर तो हम गए ही नहीं अभी, मॉडल की तो दीवार तो टॉप ही नहीं आते। पर सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रेट ऑफ चेंज है, सर उसका इसका भी उस पर कोई इम्पैक्ट होगा? वो बिल्कुल लीनियर नहीं रहेगा, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत है, इस पे इम्पैक्ट करेगा। उधर गए नहीं आप सही। अच्छा, इससे पहले भी क्वेश्चन है। अजी जी करें। वो सर क्वेश्चन ये है कि जो इसका अच्छा एक मिनट, यही तो लड़ाई है मैथमेटिक्स वालों की और स्टैटिस्टिक्स वालों, इसलिए मैं अभी लड़ाई में किया ही नहीं। पहले वो ए सी है, बी एम है, एक्स एक्स है, ये तो सुलझा लूं ना, फिर ये भी सुलझाता हूं। अच्छा अच्छा कोरिलेशन के जो आउटपुट है, हाँ उसमें मैग्नीट्यूड है, साइन तो आपने जैसे कहा वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है और जो सिग्निफिकेंस है उसको आपस में कैसे मैच करते हैं कोरिलेशन की और रिग्रेशन? क्या उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोरिलेशन में किसी चीज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग शो हो रहा है, लेकिन रिग्रेशन में आगे वो मतलब क्या इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन आती है रिजल्ट? नहीं, ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये चीजें ही दो मुख्तलिफ है। अच्छा बी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, थोड़ा आपको कंपैरिजन हो जाएगा, अच्छी बात, बहुत अच्छा। R का फॉर्मूला है समेशन x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर इनटू समेशन y माइनस y बार। और b का फॉर्मूला है n समेशन x बाय इनटू माइनस समेशन x इनटू समेशन y divided by n summation x square minus summation x whole square। ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज सेम है और न्यूमरेटर फर्क सिर्फ इतना है, बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कोरिलेशन, ये फैक्टर नहीं आता। लिहाजा ये फॉर्मूला आपको स्ट्रेंथ तो बता सकता है, रेट ऑफ चेंज नहीं बता सकता। हमें इस वक्त यहां पे रेट ऑफ चेंज चाहिए, स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। आर वेरिएबल्स लीनियरली लिंक्ड टू ईच अदर, ये एक डिफरेंट सवाल है। एंड हाउ मच वेरिएशन वन यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ब्रिंग ऑन एवरेज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, पर्पस ही फर्क है। लिहाजा दोनों फॉर्मूलास को इकट्ठा नहीं कर सकते। कोरिलेशन इज मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, regression is more of an inferential analysis. You cannot compare the value, estimation value of the coefficient of correlation with the estimated value of the regression coefficient, क्योंकि analysis का objective ही same नहीं है। जब objective same नहीं है तो how can you compare the magnitude of these two values? Sign ठीक है, वो statistical significance का process भी in general वही है, लेकिन वो तो हर coefficient के लिए है, वो नहीं के लिए नहीं, वो coefficient of variation के लिए भी ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका एक यूनिट चेंज करने से रेट ऑफ चेंज दूसरे में ऑन एवरेज वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें, ऑन एवरेज चेंज जो भी रिजल्ट इंटरप्रेट हो रहा होता है वो ऑन एवरेज हो रहा होता है, ऑन द एवरेज ऐसा होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी क्लास जो है वो 1 घंटा रेगुलरली स्टडी करना शुरू कर दे तो ऑन द एवरेज CGPA कितना इंप्रूव हो सकता है इस क्लास का, से वो कहते हैं जी आपका 3 यूनिट हो सकता है। तो एक स्टूडेंट कह रही देखे मैं तो पढ़ता रहा मेरा तो नहीं हुआ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पॉइंट्स, n पॉइंट्स कलेक्टिवली मिलके एक रिलेशन, ये सारे n पॉइंट्स कलेक्टिवली मिलके इस इक्वेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं। लिहाजा ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा,
ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बी है, एक्स में एक यूनिट चेंज करना इन एन वैल्यूज की बुनियाद पे वाई में कितनी चेंज लाएगा ऑन एवरेज। ऑन एवरेज, एवरेज का वर्ड लाजमी लेके आना है, बिकॉज आपकी एन वैल्यूज हैं और आप कंप्यूटेशंस के अंदर उनको कलेक्टिवली लेके आना है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जितना भी होता है उसमें इंडिविजुअल्स नहीं आते। मिसाल के तौर पे अभी नेशनल प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में गवर्नमेंट का रिगार्डलेस हाउस डिबेट में नहीं है, अब उसमें मेंबर एक्स उठ के गए, मेरी वजह से गवर्नमेंट बनी, मेंबर वाई उठ के गए, भाई आप सब लोगों ने मिल के कोई स्ट्रेंथ शो की है, तो ऑन द एवरेज जिसकी सीटें ज्यादा थी। Statistical trends are analyzed or true on the average. मिसाल के तौर पे अगर क्लास का एवरेज ग्रेड है जी से बी, अब जो सी है वो कहेंगे हमारा तो कहाँ भी है, तो गलत कह रहे हैं। इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, कलेक्टिव प्रोसीजर के अंदर एवरेज बिहेवियर क्या है, ठीक हो। इसका ये मतलब है कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी एक पॉइंट पे अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं 1 यूनिट, तो हो सकता है कि y पे वो सेम वैल्यू पे चेंज ना आए जो हमने कैलकुलेट किया ऑन एवरेज। बिल्कुल, बहुत अलग सवाल है असल में। क्लास सीरियसली व्हेन यू इन्वॉल्व इन, इतने खूबसूरत सवाल आप लोग करते हैं। मसलन हम कोई दो वेरिएबल्स लेके चलते हैं, ओए 52 हो गए, खैर एनी हाउ okay, we'll continue from here tomorrow। लेकिन ये सवाल प्लीज नोट कर लेना, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कल भी हम सैर हासिल, कल से मुराद जुमेरात को, क्योंकि अभी हम एप्लीकेशन की तरफ नहीं गए। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू ऑन थर्सडे।